So we are going to do Unit 6 paper and it's 2024. It's 2024 January paper. Okay. So last time we did 2021 paper. Okay. So question number one, a student carried out some tests on four aqueous solutions labeled A, B, C, and D. Each solution contained one cation and one anion. Complete the table. In part one, it says dilute aqueous ammonia was added drop by drop to 4 centimeter cube of A, okay, until there was no further change. A pale blue precipitate formed which dissolved to give a deep blue solution. Before going to do this, you need to review some test for cations and some test for anions on this, because you must know, okay, if we are going to add aqueous ammonia and if you are going to get like the pale blue precipitate, so what it is supposed to be. अगर आपको पता ही नहीं है, so you are not able to do these questions, remember, okay? तो ये जो पेल ब्लू पीपीटी आ रही है, इट शोज कि ये क्या है, कॉपर +2 है। ये कैटायन क्या है, कॉपर +2 है, क्योंकि when copper +2 reacts with aqueous ammonia, it's going to give you pale blue precipitate. And if you are going to add excess ammonia, so you would be getting deep blue solution. You would be getting deep blue solution. तो ये कॉपर है, ये कॉपर है। And in part 2, dilute aqueous ammonia was added drop by drop to 4 centimeter cube of B until there was no further change. Okay. अब वो B में अमोनिया डाल रहा है। Okay. फिर वो कह रहे हैं until there is no further change. Okay. A white precipitate formed with the first few drops. This precipitate dissolved in excess ammonia to give a colorless solution. जब आपने अमोनिया डाला and then you got a white precipitate, और फिर white precipitate dissolved in excess ammonia to give a colorless solution. It indicates that like the cation, basically, first of all, they are asking the formula of the white precipitate and the formula of the complex ion which forms in the colorless solution. तो आप टेबल में जाएंगे, ओके, वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा कि when we add aqueous ammonia and we are going to get the white precipitate with the first few drops. अच्छा, ये जो है ना आपके पास, ये आपको जिंक के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। किसके मिलते हैं, किसके मिलते हैं, जिंक के मिलते हैं। ओके, अम्मार, हम्माद एंड अजका। तो ये किसके प्रेसिपिटेट मिलते हैं हमें, जिंक के प्रेसिपिटेट। तो यू मस्ट नो कि भाई व्हाइट पीपीटी क्यों आ रही है व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड एक्वियस अमोनिया। ओके, जबकि कॉपर के केस में क्या था, ब्लू पीपीटी आ रही थी, जिंक के केस में क्या है, व्हाइट पीपीटी आ रही है। सो आई वुड से के they are asking the formula, not the ion. So I would write that it is zinc hydroxide, which is insoluble in water. That's why it's going to give you white precipitate. जब आपने एक्सेस में डाला तो वो क्या कहता है, पीपीटी डिसॉल्व्ड। वो क्या कहता है, पीपीटी डिसॉल्व्ड। तो जिंक का अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिंक का अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ओके, दैट इज जिंक NH3 4। जिंक का अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें, दैट इज जिंक NH3 टाइम्स 4 एंड विद अ 2 पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स बना है जिसने आपको क्या दिया है, कलरलेस सॉल्यूशन दिया है, जिसने आपको कलरलेस सॉल्यूशन दिया है। तो मतलब कि इस तरह के क्वेश्चंस में एटलीस्ट आपको ये पता हो कि व्हाइट पीपीटी बन रही है तो क्यों बन रही है, ब्लू पीपीटी बन रही है तो क्यों बन रही है। इसी तरह से फिर वो क्या कहता है कि इन्होंने जो सैंपल लिया था जिसको इन्होंने कहा था A, B, C and D, ईच सॉल्यूशन कंटेन वन कैटायन एंड वन एनायन। अगले टेस्ट में क्या कर रहा है, डाइल्यूट एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड उसने डाला। ओके, उसने क्या किया, डाइल्यूट एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, was added drop by drop to 4 cm cube of C until there was no further change.
अब इसने क्या किया, ये वाली चीज मिस कर दी और इसने तुम्हें बता दिया कि यार ये जो कैटायन है ना, ये आयरन 3+ है। अब हमें पता है कि आयरन 3+ के लिए जो हम टेस्ट करवा रहे होते हैं उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। ओके, तो ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है हमें, ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है हमें, तो आयरन 3 के लिए याद रखिएगा, क्योंकि ये आयरन 3, इट्स नॉट आयरन 2, तो हमें जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो ब्राउन मिलेगा। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा कि few drops few drops of sodium hydroxide gives brown ppt which does not dissolve in excess। तो मतलब कि आयरन 3 कंफर्म हो गया यहाँ पर, मतलब कि आयरन 3 कंफर्म हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड उसने डाला टू 4 cm³ ऑफ डी until there was no further change। फिर कहता है an off white precipitate formed, okay, which did not dissolve in excess, but darkened when left to stand। अब अब आप लोगों को पता नहीं चल रहा कि यार अभी इसने जो ऑब्जर्वेशन लिखी है अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन, कि इसको क्या होना चाहिए, क्योंकि वो हमसे क्या मांग रहा है, कैटायन मांग रहा है ना, वो हमसे कैटायन मांग रहा है। तो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका कैटायन होगा वो क्या होगा, मैंगनीज होगा। अकॉर्डिंग टू दिस आपका जो कैटायन होगा वो क्या होगा, मैंगनीज होगा। तो इसी तरह से ये जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो आयरन 2 हो, चाहे वो आयरन 3 हो, चाहे वो जिंक हो या कोई भी हो, तो एटलीस्ट आपको वो कोई ना कोई एक चीज तो दे देगा। इतना आपको हिंट मिल जाएगा कि ऑब्जर्वेशन देखकर आप अपना कैटायन डिसाइड कर सकते हो, या आप अपने कैटायन को देखकर आप अपनी ऑब्जर्वेशन को डिसाइड कर सकते हो। तो ये जो आपका कैटायन होगा वो क्या बताया मैंने आपको, मैंगनीज होगा, Mn2+। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन which results in the darkening of the off white precipitate इन A part 4। उसने एक वर्ड यूज किया कि जो है आपका, अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो, ओके, ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट को, तो वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। वो डार्क क्यों होता है पता है आपको, कि मैंगनीज की ऑक्सीडेशन हो जाती है, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन हो जाती है। देखो ट्रांजिशन मेटल्स की हर ऑक्सीडेशन का एक स्पेसिफिक कलर है। जैसे कि आयरन 2 है ग्रीन होता है, आयरन 3 है ब्राउन होता है। इसी तरह से जो Mn2+ था आपका, ये ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट थे। थोड़ी देर के लिए आपने इसको छोड़ दिया, आप किसी और काम में लग गए, आपने वापस आके देखा तो अब आपके प्रेसिपिटेट का कलर वो नहीं है। तो इससे हमें एक बात ये भी समझ आती है कि हम जो लैब में ऑब्जर्वेशन लेते हैं वो हमें एट अ टाइम वो लेनी है। क्यों, कि हो सकता है कि जब हम उसको थोड़ी देर के लिए जो है ना छोड़ दें, जैसे कि एप्पल होता है, आप एक बाइट लो उसका और उसको छोड़ दो, या आप थोड़ी देर के बाद आओगे आप देखना कि उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो वो बेसिकली आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाती है, आयरन 2 से आयरन 3 बन जाता है, आयरन 3 ब्राउन होता है तभी वो ब्राउन का शेड दे रहा होता है। जैसे ही आप उसको फ्रेशली कट करते हो तो वो आपको ग्रीन का शेड दे रहा होता है, क्योंकि उसमें आयरन 2 होता है। सेम गोज ओवर हेयर। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि भाई आपका जो मैंगनीज है वो क्या हो जाएगी, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। चूंकि वो हमसे टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहा था, तो तभी हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन लिख दिया। अच्छा, लास्ट पेपर में भी हमने देखा कि कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आया था, वहां पर सॉल्यूशन बनवा रहा था हमसे। यहाँ पे वो क्या कहता है, यहाँ पे वो क्या कहता है कि adding dilute nitric acid followed by aqueous silver nitrate to A and B resulted in both forming precipitate। तो भाई अगर आपको ये पता हो कि ये जो प्रेसिपिटेट हमें दे रहा है, तो ये अभी पहली स्टेटमेंट से ही हमें पता लग गया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट से ही हमें पता लग गया कि ये किसकी बात कर रहा है, ये हैलाइड्स की बात कर रहा है। जो सिल्वर नाइट्रेट डालने पे तो भाई हमें तो जो है ना क्लोराइड के प्रेसिपिटेट मिलते हैं, ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट मिलते हैं,
या फिर हमें आयोडाइड के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। हाँ ये है कि उनका कलर जो है वो डिफरेंट होता है, तो हम उनके कलर को देखकर डिसाइड कर लेंगे कि ये क्या हो सकता है। ओके जी, चलें फिर आते हैं हम। The student was not certain but suggested that the anion in A was the chloride ion and the anion in B was the bromide ion. State why the student was not certain and outline a further test which could be carried out to confirm the presence of both these anions. अब देखो इसमें सीन ये है, सीन इसमें ये है भाई कि टेस्ट ट्यूब वो असल में भूल गया है, वो असल में भूल गया है कि भाई किसमें क्लोराइड था किसमें ब्रोमाइड था, तभी तो वो सिल्वर नाइट्रेट डाल के उसे टेस्ट कर रहा है। ओके, तो और जो ये कलर नजर आ रहे होते हैं ना आपको, आप ये नहीं समझना कि यार ये बिल्कुल जो है वो एग्जैक्ट आपको एकदम क्लियर कलर नजर आएंगे कि हाँ यार ये तो मेरा येलो प्रेसिपिटेट है, ये तो मेरा ब्राउन प्रेसिपिटेट है, या जो भी है येलो वाइट प्रेसिपिटेट है। तो ये बिल्कुल मिक्स कलर्ड होते हैं, पता है आपको, एकदम जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कलर देखने में जो है वो आपको कैसे नजर आ रहे होते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो यार, कोई एज सच बहुत ज्यादा डिफरेंस ये नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं, इनको फर्दर टेस्ट करना पड़ता है हमें, इनको हमें फर्दर टेस्ट करना पड़ता है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखिएगा जरा कि आपको क्या इससे मतलब वो होगा कि क्या होना चाहिए। ये देखो, अब मैंने तो इसमें डाल दिया था सिल्वर नाइट्रेट, मैंने इसमें देखा कि यार क्लोराइड के वाइट पीपीटी आ रही है। अब ब्रोमाइड और आयोडाइड में कोई एज सच डिफरेंस नहीं है, ये तो फिर भी आपको कुछ थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, लेकिन व्हेन यू वुड बी डूइंग इन द लैब तो फिर आपको अंदाजा होगा कि यार जो चीज थ्योरी में थी वो तो हमें नजर ही नहीं आ रही है यहाँ पर, है ना। तो अब मैं क्या करूं, तो इसलिए इनका कंफर्मेशन टेस्ट हम कर रहे होते हैं किसके साथ, अमोनिया के साथ हम कर रहे होते हैं। फिर हम उसमें अमोनिया ऐड करते हैं, अमोनिया ऐड करने के बाद फिर हमें जो है ना फर्दर हम देख रहे होते हैं कि प्रेसिपिटेट रिमेन्स या प्रेसिपिटेट मेरा डिसॉल्व हो गया। तो इसलिए आपको फिर जो है ना वो कंफर्म हो जाएगा इसके बाद बेसिकली। तो दिस इज ऑफ 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये कि why the student was not certain and outline a further test which could be carried out to confirm the presence of both these anions. तो मैं लिख देता हूं कि after adding silver nitrate, colors of are similar, which is difficult to distinguish सही है from each other। तो उसमें फिर क्या होता है कि भाई then we add dilute ammonia aqueous। तो precipitate of silver chloride dissolves, but okay, precipitate of silver bromide does not dissolve। ये पॉइंट वाली बात है। ओके, तो हमने क्या किया, इन शॉर्ट उसमें अमोनिया डाल के उसको हमने फर्दर कंफर्म कर लिया। फिर कह रहा है द स्टूडेंट टेस्टेड फॉर द एनायन इन सी। अब वो एनायन को टेस्ट कर रहा है इन सी बाय एडिंग एसिडिफाइड बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व्ड अ वाइट। देखो अब फिर वही बात, मतलब कि बेरियम नाइट्रेट का जब नाम आया, बेरियम नाइट्रेट का जब नाम आया, ओके,
तो मैं समझ गया, मैंने कहा यार ये तो कोई सल्फेट का टेस्ट हो रहा है। क्यों? कि बेरियम नाइट्रेट जो है ना वो सल्फेट से रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बनाता है, और बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं। ओके, और बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं, तभी वो हमें कह रहा है। यहाँ पे वो कोई एन आयन नहीं मांग रहा है, वो फॉर्मूला मांग रहा है तुमसे। तो फॉर्मूले में तो कैटायन भी होते हैं, एनायन भी होते हैं। अब कैटायन क्या था इस सी में, हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं जरा, अगर आप देखें सी का कैटायन था आयरन 3। और और यहां से मुझे क्या हिंट मिला? यहां से मुझे हिंट ये मिला कि यार अगर मैं बेरियम नाइट्रेट ऐड करता हूं, आई एम गेटिंग दिस, तो ये तो पक्का हो गया कि इसमें सल्फेट है ही है। और ये भी पक्का है कि इसमें आयरन 3 है। तो आयरन का चार्ज जो है वो यहाँ चला जाएगा और सल्फेट का चार्ज यहाँ आ जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड सी, कंपाउंड इन सॉल्यूशन सी। सही है जी, ओके हो गया। चलें। The student researched further tests for the anion present in D। डी पे आ जाते हैं जरा, क्या था डी में? और डी में Mn था ना असल में। कैटायन तो पता है, लेकिन एनायन अभी तक हमें नहीं पता है। A test was found which involved the addition of sodium hydroxide solution followed by aluminum and then heating strongly. Ammonia gas was given off, suggest a possible anion present in D। देखो, अब यहाँ पर नाइट्रेट का टेस्ट है ये नाइट्रेट का टेस्ट है। अगेन आई एम सेइंग कि भाई टेस्ट जरूर पता होने चाहिए। क्यों? कि देखो आपका माइंड फौरन से क्लिक करे फिर, मतलब गुंजाइश ही नहीं है ना सोचने की। आपने देखा कि यार ऑब्जर्वेशन में उसने ये चीजें ऐड की हैं, आप समझ गए, आपने कहा हाँ यार, आपको दिमाग आपका कहाँ गया, आपको हिंट मिली कि अच्छा मतलब इसका मतलब ये है, ये वहां से लिंक कर रहा है। तो आप सपोज करो कि आपको सारी चीजें पता है, सब कुछ ऑब्जर्वेशन वगैरह पता है, बट आपको मैच ही नहीं करवाना आ रहा। इसका क्या मतलब है कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा टेस्ट किसके लिए होता है। तो फिर भी आपको काफी ज्यादा जो है वो परेशानी होगी। तो अब मैंने जब ये देखा, मैंने कहा यार ये जो जितनी बातें इसने यहाँ पर लिखी हैं, ये इशारा कर रही हैं कि ये टेस्ट किसका है, नाइट्रेट का है। क्योंकि नाइट्रेट में हम क्या करते हैं पता है आपको, एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, और फिर हम उसमें एल्यूमिनियम फॉयल डालते हैं, फिर हम उसको थोड़ा सा जेंटली वार्म करते हैं। जेंटली वार्म करने से हमें क्या मिलता है? अमोनिया गैस गिवन ऑफ। और अमोनिया गैस को हम जो है वो फिर वो टेस्ट कैसे करते हैं? अमोनिया गैस को हम टेस्ट कैसे करते हैं? डैम्प रेड लिटमस पेपर हम उसमें डालते हैं, तो डैम्प रेड लिटमस पेपर क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। तो अगर डैम्प रेड लिटमस पेपर आपका ब्लू हो गया, तो क्या कहेंगे कि अमोनिया इज कंफर्म्ड। और ये अमोनिया आया कहाँ से था? ये उस नाइट्रेट के टेस्ट का रिजल्ट था। तो खैर, फाइनली आई वुड राइट के नाइट्रेट इज देयर, दैट इज NO3 माइनस। एनायन की बात कर रहे हैं ना, तभी मैं आयन लिख रहा हूँ। This question is about the identification of four different organic compounds, W, X, Y, and Z. The molecule of each compound contain a total of 3 carbon atoms and only one functional group. अच्छा, मतलब कि उसने आपको ये भी बता दिया यहाँ पर कि उसमें 3 कार्बन एटम्स हैं। ओके, और एक फंक्शनल ग्रुप है। कोई भी हो सकता है यार, आगे देखते हैं क्या है। A sample of W gave a positive result with Tollens reagent. Give the possible positive result and the displayed formula of W। तो टॉलेंस reagent आपको तो पता है, हमने आपको ऑर्गेनिक में बताया था कि ये जो टॉलेंस reagent होता है, ये किसके लिए होता है? एल्डिहाइड को चेक करने के लिए होता है। और अगर ये एल्डिहाइड का टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, तो आप समझ जाओ कि इसमें एल्डिहाइड होगा। ओके। अच्छा, टॉलेंस रिएजेंट का जो फॉर्मूला होता है ना, टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली सिल्वर का कॉम्प्लेक्स होता है। टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली सिल्वर का कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसकी इक्वेशन तो खैर अभी फिलहाल के लिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बट एटलीस्ट आपको इतना जरूर पता हो
कि जो है ना टॉलेंस रिएजेंट आपको सिल्वर मिरर देता है, और एज एन ऑब्जर्वेशन तो आप समझ जाते हो कि हाँ यार एल्डिहाइड आपका कंफर्म है। तो 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है इसका। ओके। और 3 कार्बन थे इसमें, मैंने 3 कार्बन बना दिए, और एल्डिहाइड का ग्रुप मैं लगा दूंगा यहाँ पर। चूंकि डिस्प्लेट फॉर्मूला पूछ रहा था तो हमें एक एक बॉन्ड को शो करना पड़ेगा। दिस इज द डिस्प्लेट फॉर्मूला ऑफ प्रोपानल। प्रोपानल, प्रोपानल एल्डिहाइड, ओके, प्रोपानल एल्डिहाइड। तो वो असल में उसके पीछे बिहाइंड द सीन ये चल रहा होता है कि ये मैंने लिया CH3CH2CHO एंड आई हैव एडेड टॉलेंस रिएजेंट, जो कि ये होता है, ओके, जो कि ये होता है। और और इससे बनता क्या है, सिल्वर, सिल्वर सॉलिड जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, दैट इज सिल्वर मिरर। और आपका जो एल्डिहाइड था ना, वो आपको क्या दे देता है, ये दे देता है आपको कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट, और आपको अमोनिया गैस मिलती है यहाँ से, और आपको क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ऐसे ही मैंने आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये इक्वेशन लिखी है, अदरवाइज दिस इक्वेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसे नहीं समझना कि आपको ये भी लिखनी है, नो। ओके। फिर क्या कहता है, a sample of X produced a sweet smelling substance when warmed with ethanoic acid and a few drops of concentrated sulfuric acid। देखो, इसके लिए आपकी नॉलेज बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपने जैसे ही देखा कि यार स्वीट स्मेलिंग आ रही है, तो आप समझ गए, आपने कहा कि ये स्वीट स्मेल तो एक ही की होती है, और वो क्या होता है, एस्टर। वो क्या होता है, एस्टर। एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है ये। सही है। तो 1 मार्क का था, बहुत है। ओके। फिर कह रहा है कि there are only 2 peaks in the carbon 13 NMR spectrum of X। ओके। अच्छा, वो X को आइडेंटिफाई करवा रहा है। A sample of X produced a sweet smelling substance when warmed with ethanoic acid। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे भी देख लेना भाई, थोड़ा सा और भी आगे स्टेटमेंट उसने लिखी है, मैंने जल्दी में लिखा है ये आंसर। अभी मैंने नीचे जाते हुए जब देखा तो उसने आगे लिखा हुआ है कि व्हेन वार्म्ड विद एथेनोइक एसिड। तो एस्टर तो एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये तो कुछ और होना चाहिए। एस्टर तो एथेनोइक के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ओके। तो आप समझ जाओ कि ये एस्टर नहीं होगा, बल्कि आपका जो एक्स है वो क्या होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए। क्योंकि 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 होता ये है कि जब आपका अल्कोहल रिएक्ट करता है किसके साथ, आपका अल्कोहल रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो ये बनाता है एस्टर एंड वाटर। तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर कि व्हेन योर अल्कोहल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आपको देता है एस्टर, और आपको देता है वाटर। ओके। अच्छा जी, फिर क्या कह रहा है कि there are only 2 peaks in the carbon 13 NMR spectrum of X। Draw the displayed formula of X labeling the carbon environments। अच्छा, ऊपर इसने आपको इंफॉर्मेशन भी दी है कि X में 3 कार्बन एटम है, X में 3 कार्बन एटम है, और ये पीक कितनी दे रहा है, और ये पीक कितनी दे रहा है, 2 पीक दे रहा है। कितनी पीक दे रहा है, 2 पीक दे रहा है वो। तो आप समझ जाओ कि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर जो हम बना रहे होते हैं अल्कोहल का, स्ट्रेट चेन का 3 कार्बन एटम के साथ, ये कुछ वैसा तो नहीं बनने वाला है ना। यानी कि अगर मैं इसको यूं बना दूं सिंपली कि 1 2 3 एंड देन दिस इज OH, यानी कि ये प्रोपेन 1 ऑल तो नहीं हो सकता ये। क्योंकि अगर ये प्रोपेन 1 ऑल होता, तो कार्बन 13 NMR में यहाँ पे कार्बन के 3 इन्वायरमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, है ना। एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तो
तो ये कह रहा है कि दो पीक्स आ रही हैं उसकी, तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं इस OH को यहाँ से उठा के यहाँ ले आऊंगा और इस H को मैं उठा के यहाँ ले जाऊंगा। तो अगर आप गौर से देखो तो ये वाला CH3 और ये वाला CH3 ये दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि इन दोनों का नेबर क्या है, सेम है। इन दोनों का नेबर क्या है, सेम है, दैट इज CHOH। तो जब नेबर सेम होता है ना तो उनका एनवायरनमेंट सेम होता है। जब नेबर सेम होता है तो उनका एनवायरनमेंट सेम होता है, याद रखिएगा। सो इट हैज ओनली टू एनवायरनमेंट्स। इट हैज ओनली टू एनवायरनमेंट्स, याद रखिएगा। ओके, 2 मार्क का क्वेश्चन था ये। A sample of Y gave a positive result when warmed with an alkaline solution of iodine. Give two observations of a positive result from this test. अब अगेन योर ऑर्गेनिक शुड बी वेरी गुड। ओके, तो अब आप ऑर्गेनिक की जब आप बात करोगे तो अच्छा, उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है कि लेबलिंग करो कार्बन एनवायरनमेंट्स को ना, तो मैं इसको लेबल ऐसे कर देता हूँ कि आ, ये और ये सेम है और ये डिफरेंट है। ये और ये सेम है और ये डिफरेंट है। ओके, जब मैंने इसको देखा तो मेरे माइंड ने क्लिक किया कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है। ये क्या है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है। आयोडोफॉर्म टेस्ट में व्हाट डिड वी गेट येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म। एक हमें मिलता है येलो प्रेसिपिटेट और दूसरी ऑब्जर्वेशन हमें मिलती है आयोडीन की स्मेल। आयोडीन की स्मेल, तो आयोडीन की स्मेल जो होती है वो एंटीसेप्टिक स्मेल होती है। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जब जाते हो, है ना, तो आपको कैसी स्मेल फील हो रही होती है, तो वो बेसिकली ड्यू टू आयोडीन, है ना, एंटीसेप्टिक स्मेल होती है उसकी। फिर क्या कहता है, आइडेंटिफाई बाय नेम और फॉर्मूला, पार्ट 2 की बात कर रहा है, आइडेंटिफाई बाय नेम और फॉर्मूला। तो अब मैं क्या करूं भाई, है? अब मैं क्या करूं यहाँ पर, तो आपको आयोडोफॉन्ट की जो इक्वेशन होती है यहाँ पर आपको वो देखनी है। आयोडोफॉन्ट का जो हम टेस्ट करवा रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन जो आपको मिल रही है, आपको वो देखना है। ओके, तो अब मैं वो कैसे देखूं यहाँ पर, तो वी नो दैट कि 3 कार्बन थे ना इसमें, है ना, 3 कार्बन थे ना इसमें। तो मैंने लिया ये, ओके, मैंने लिया ये आपका प्रोपानॉन था जिसने आपको आयोडोफॉर्म का टेस्ट दिया है। पता है क्यों, क्योंकि आयोडोफॉर्म इस चीज का टेस्ट देता है आपको, याद रखिएगा। मिथाइल कीटोन का टेस्ट पॉजिटिव देता है आयोडोफॉर्म, किसका, मिथाइल कीटोन का, किसका, CH3 C डबल बॉन्ड O का। ये अगर होता ना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो तो ये टेस्ट आपको पॉजिटिव नहीं देता। पॉइंट वाली बात है ये, पॉइंट वाली बात है। अगर ये होता CH3, अगर ये क्या होता, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, तो ये आपको पॉजिटिव टेस्ट भी नहीं देता, याद रखना। ओके, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सही है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास क्या होना चाहिए, मिथाइल कीटोन होना चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अ, मैं यहाँ नीचे रेफरेंस के लिए इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये जो टेस्ट पॉजिटिव आ रहा होता है ये क्यों आ रहा होता है। तो ये रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस, सेट। और
ये आपको देता है CH3, और ये आपको देता है ये। तो ये आपका येलो पीपीटी है, और इसकी वजह से आपकी एंटीसेप्टिक स्मेल है। अच्छा, ओके। तो चलें जी। A sample of Z, अच्छा Z में भी 3 कार्बन है, प्रोड्यूस बबल्स व्हेन सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन वाज एडेड, ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ Z। अब सोडियम कार्बोनेट के ऐड करने से आपको ये बबल्स दे रहा है। सोडियम कार्बोनेट के ऐड करने से आपको ये क्या दे रहा है? बबल्स दे रहा है। तो आप सोचो कि सोडियम कार्बोनेट की नेचर क्या है। आप सोचो कि सोडियम कार्बोनेट की नेचर क्या है। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेस। तो जब बेस रिएक्ट करके बबल्स दे रहा है तो वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा? एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। तो आप समझ जाओ कि जी एक तो आपका ऑर्गेनिक है, दूसरा इसमें 3 कार्बन है, तीसरा ये एसिड है। तो आपके माइंड ने क्लिक किया, आपने बोला यार ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। तो अब मैं इसको क्या बना दूंगा? डिस्प्लेट बनाना है ना। तो 1 3, ये आ गया। सही है जी। A student was given a 0.02 mole per dm cube solution of ammonium vanadate NH4VO3, and asked to prepare solutions containing vanadium ions in different oxidation states, and then to confirm the results. The student decided to use the 3 different reducing agents shown. जिंक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और टिन है। The student pipetted 25 centimeter cube of the vanadate solution into a flask and added about 60 cm cube of 1 mole per dm cube sulfuric acid. About 5 gram of granulated zinc was added to the flask. Cotton wool was used to stopper the flask, which was heated and gently boiled for 30 minutes. Okay. Suggest why only an appropriate volume of sulfuric acid was used. सल्फ्यूरिक एसिड का एप्रोप्रिएट वॉल्यूम इन्होंने यूज क्यों किया? ओके। उसने सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आपको ये बात कही है कि added about 60 cm cube of 1 mole per dm cube sulfuric acid, and सल्फ्यूरिक एसिड का इसने ज्यादा वॉल्यूम लिया है। आप देख रहे हो, मतलब 60 cm क्यूब इज अ लॉट। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब हो तो, राइट। तो वो इसलिए लिया है, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम इसने इसलिए लिया है 60 cm क्यूब। 60 ओनली लिखा हुआ है ना, मतलब ये एक्यूरेट वॉल्यूम नहीं है, ये उसने मेजरिंग सिलेंडर से ले लिया होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड को उसने एक्सेस में लिया है, क्यों पता है? ताकि आपके जितने भी वेनेडियम वेनेडियम आपका जितना भी है वो सारा का सारा क्या कर जाए? रिएक्ट कर जाए। ओके। वो सारा का सारा रिएक्ट कर जाए, क्योंकि आपका जो वेनेडेट है ना, जो आपका वेनेडेट है ना, वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जो आपका वेनेडेट है वो क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ओके। तो कितना लिया है उसने? 25 लिया है। कितना लिया है? 25 लिया है। तो अब मुझे यहाँ लिखना ये चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड is in excess so that all so that all vanadium
सो दैट ऑल वेनेडियम, कौन सा वेनेडियम, वेनेडियम 5 reacts completely. तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये भी मैं लिख सकता हूँ, ओके। The cotton wool helps to prevent the reoxidation of the vanadium and to allow the escape of hydrogen gas. State why hydrogen gas was produced. You may include an equation in your answer. हाइड्रोजन गैस जो है वो कैसे प्रोड्यूस हो गई यहाँ पर, ओके। भाई वो ऐसे यूज हुई है आपकी हाइड्रोजन गैस के, वो रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। और सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एसिड। जब सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारा किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, जब सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारा किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपको पता है ना ये बात कि when acid reacts with metal, so it produces salt and hydrogen gas. It produces salt and hydrogen gas. Okay? तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि zinc is a metal which reacts with sulfuric acid to produce hydrogen gas, कुछ इस तरह से। ओके, पॉसिबल रीजन बताओ कि फ्लास्क को इन्होंने हीट क्यों किया। फ्लास्क को इन्होंने हीट क्यों किया? कॉमन सेंस की बात है, टू स्पीड अप द रिएक्शन। और यू कैन से टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एक ही बात है, कान को यहाँ से पकड़ो, वहां से पकड़ो। द स्टूडेंट concluded that zinc had reduced the vanadium 5 to the vanadium 2 oxidation state। यानी जिंक जिंक जो है had reduced the vanadium 5 to the vanadium 2। जब जिंक की प्रेजेंस में तुम्हारा जो वेनेडियम है ना, वो +5 से +2 में चला गया। Since this is the decrease in oxidation state, since this is decrease in oxidation state, तो explain the sequence of colors that the student would have seen to reach this conclusion. Link each color to the vanadium oxidation state। देखो मैंने आपको क्या बताया शुरू में कि यार ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, इनकी हर ऑक्सीडेशन का कोई ना कोई कलर होता है। इनकी हर ऑक्सीडेशन का कोई ना कोई कलर होता है, याद रखिएगा। अब ये जो कलर वाली कहानी है ना, ये तुम्हें पता होनी चाहिए, स्पेशली फॉर द ट्रांजिशन मेटल्स। मैं आपको ट्रांजिशन मेटल्स का लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस वीडियो में देख लेना। मैंने कलर्स को स्पेसिफाई किया हुआ है कि कौन सा कलर किसके लिए होता है। सही है जी, सेट है। तो जब वेनेडियम 5 होता है ना, तो वो येलो होता है। जब वेनेडियम 4 होता है ना, तो वो ब्लू होता है। जब वेनेडियम 3 होता है ना, तो वो ग्रीन होता है। और जब वेनेडियम 2 होता है तो वो पर्पल कलर का होता है। तो अब आपको लैब कर रहे हो आप लैब में खड़े हो, आप रिएक्शन करवा रहे हो। जब आप रिएक्शन करवा रहे होते हो तो अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्वेशन मिल रही होगी ना यार।
आपको कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्वेशन मिल रही होगी। मैं एक वीडियो शेयर करता हूँ आपके साथ, ये इन्होंने काफी अच्छी बनाई है। ये देखिएगा जरा, ये देखो, ये देख रहे हो आप लोग? ये V प्लस है, 4 है, +3 है, फिर +2 है। Hi, this is ये Scott ये from ये ChemTalk. In this ये ये video, we ये are going to show ये the most colorful experiment we've ever seen, ये the vanadium चीज। oxidation state experiment. What you are looking at now are beautiful. It's a 20. तो मतलब कि ड्यूरिंग द रिएक्शन आप जब ऑब्जर्व कर रहे होगे तो एटलीस्ट You can see that it's ये green देखो। now. We've made our sodium vanadate, which is great. It's a beautiful green color. Next, we're going to add some concentrated sulfuric acid, विच इज एन and you'll ऑक्सीडाइजिंग see it एजेंट। turn yellow. Now we have vanadial sulfate, which is vanadium in the +5 oxidation state. Now we're going to add some zinc pellets. तो भाई इस तरह से ड्यूरिंग द रिएक्शन, अब आपको पता है कि यार आपके रिएक्शन करते करते एक पोजीशन पे आके स्टॉप हो गया वो, तो मतलब कि ये आपका एंड है। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है। अब मुझे पता है कि यार जो वेनेडियम +2 होता है वो पर्पल होता है। अब वो +2 पे आके स्टॉप हो गया, फर्दर अपना कलर ही चेंज नहीं कर रहा वो। मैं समझ गया, मैंने कहा भाई तो इसने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर ली है। कहाँ से कहाँ? +5 टू +2 पे ये आ गया है। तो अब इसके आंसर में आपको ये लिखना है कि एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ कलर। तो V+5, V+5, V+4, V+3 एंड V+2। ओके, तो आइए जरा, आपका जो V+5 है वो येलो है, V+4 है वो आपका ब्लू है, V+3 जो है वो ग्रीन है, और जो +2 है वो पर्पल है। के 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। The student was told that sulfur dioxide is toxic and that cylinders of the gas are not recommended for use in schools. The student was advised to prepare it within the reaction mixture from sodium sulfate and hydrochloric acid. Suggest why sulfur dioxide is advised to be prepared in this way. भाई उसने ऊपर खुद ही बता दिया कि यार वो क्या है, टॉक्सिक है एक तो, और जब आप उसको सिलेंडर आपको यूज करते हो तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका सिलेंडर से वो गैस की लीकेज हो सकती है, स्केप हो सकती है वहां से, और इस वजह से आप जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड को इस तरह से क्या कर रहे हो यूज कर रहे हो। सही है। तो अब मुझे ये लिखना चाहिए कि 1 मार्क का क्वेश्चन है कि टॉक्सिक सल्फर डाइऑक्साइड गैस is likely to escape is likely to escape from the gas cylinder। तो इसलिए इसने क्या रेकमेंड किया है कि आप भाई उसको रिएक्शन में ही बना लो और आप उसे यूज कर लो विद इन द रिएक्शन मिक्सचर, कुछ ऐसा कर लो। ओके, तो ये है भाई, आगे चलते हैं। Write the equation for the generation of sulfur dioxide from the reaction between sodium sulfate and hydrochloric acid. State symbols are not required। तो सब कुछ तो बता दिया इन्होंने यार।
सोडियम सल्फेट, सल्फाइड भी बता दिया इन्होंने तुम्हें, सल्फेट 4, Na2SO3, इसका रिएक्शन किया HCl के साथ। ओके, क्या बनेगा, क्या बनेगा? इसमें बनता है सोडियम क्लोराइड और इसमें बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और इसमें बनता है वाटर, और इसमें क्या बनता है? वाटर। ओके, स्टेट सैंपल इन्होंने पूछे नहीं थे तो आपको भी लगाने की जरूरत नहीं है। सेट हो गया जी। चलें आगे आते हैं। After using tin as the reducing agent, the student carried out a titration with acidified potassium manganate to find out how far the vanadium had been reduced. State a suitable method to remove the unreacted tin. तो unreacted tin, tin is a solid यार, रिएक्शन मिक्सचर से सॉलिड को तुम किस तरह से रिमूव करते हो? फिल्टर कर लो उसे। ओके, तो ये है। Information about the experiment is shown. 25 cm cube of 0.02 mole per dm cube ammonium vanadate was reduced by 10. 20 cm cube of 0.01 mole per dm cube potassium manganate was required to oxidize the vanadium back to its original state. The manganate half equation is this: reduce the vanadium ion oxidation state. After the reduction by 10, you must show your working. You must show your working. तो अब ये जो है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, इसमें आपसे पूछ रहा ये है कि वेनेडियम आयन की ऑक्सीडेशन आप बताओ कि जिस ऑक्सीडेशन को रिड्यूस किया है किसने? टिन ने। और कितना रिड्यूस किया है, और कितना रिड्यूस किया है, बात समझ रहे हो मेरी? तो आप इसको एक काम करो, सबसे पहले तो आप इसमें क्या फाइंड आउट करोगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेनेडेट 5। तो मैं काम करता हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ वेनेडियम 5, जो कि वॉल्यूम भी दिया हुआ है उसने, उसको मैं डीएम क्यूब में चेंज करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो आंसर मिलेगा मुझे 25/1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.02। सो आई गॉट 0.0005 मोल। ओके, सही है। अच्छा, इन्होंने ये भी डाटा आपको दिया हुआ है, इसके भी मोल फाइंड आउट कर लो। मैंगनेट के Mn+7, इसका वॉल्यूम इतना है। तो ये आपको ये मिल जाएगा। ओके, ये आपको ये मोल मिल गए। सेट हो गया। अच्छा, इन्होंने आपको इक्वेशन भी दी हुई है, इन्होंने आपको इक्वेशन भी दी हुई है। तो अगर मैं देखूं इक्वेशन में, तो MnO4 का इलेक्ट्रॉन के साथ क्या रिलेशन है? 1:5 का। क्या रिलेशन है? 1:5 का। तो मैं क्या करूंगा, MnO4 माइनस का रेशो लगाऊंगा इलेक्ट्रॉन के साथ, जो कि 1:5 का है। तो मेरे पास जो मोल आए हैं वो कितने आए हैं? 0.0002 आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ओके, तो x वुड बी इक्वल टू 0.001 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इसने इतने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, यानी इसने इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? गेन किए हैं। याद रखिएगा, इसने इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? गेन किए हैं।
तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए कि ये वो इलेक्ट्रॉन मैंने फाइंड आउट किए हैं जो कि गेन्ड हैं बाय व्हाट, बाय द मैग्नेट। ओके, तो वो वेनेडियम की आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है ना, वो आपसे वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। अच्छा, जब मैग्नेट आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो फिर लूज किसने किए थे? अगर मैग्नेट आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो आपके इलेक्ट्रॉन लूज किसने किए थे? बात समझ रहे हो मेरी? तो इलेक्ट्रॉन लूज किसने किए होंगे आपके? उसने किए होंगे, वेनेडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। बात समझ रहे हो मेरी? वेनेडियम ने इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे? लूज किए होंगे। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय द वेनेडेट, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय वेनेडेट। ओके, तो लेकिन उसको मैं कैलकुलेट कैसे करूं? उन इलेक्ट्रॉन्स को मैं कैलकुलेट कैसे करूं? दैट्स द मेन पॉइंट, दैट्स द मेन पॉइंट कि मैं उसको कैलकुलेट कैसे करूं, राइट? तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आई थी किसकी? वेनेडेट की, यानी कि वेनेडियम +5 की, दैट वाज 0.0005, 0.0005। ओके, और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन आए हैं गेन्ड, ये किसके आए हैं? मैग्नेट के। तो अब मैं कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ वो देखना चाह रहा हूं ना। तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय वेनेडियम +5, वेनेडियम +5। तो मैं क्या करूंगा? 0.0005 डिवाइडेड बाय 0.001, ये आपके पास आ जाएगा 2। दो इलेक्ट्रॉन वेनेडियम ने लूज किए हैं, दो इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसका मतलब यह है कि इनिशियली उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? +5 थी। दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के बाद उसकी कितनी बचेगी? +3। तो मैंने इसको कैसे किया? ऐसे। और मुझे पता लग गया कि जो आपका वेनेडेट है, आपका जो वेनेडेट है जिसमें ऑक्सीडेशन उसकी 5 है, तो was reduced to vanadium +3 from vanadium plus का 5। तो इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब थोड़ा सा टेक्निकल आपका माइंड होना चाहिए इसके लिए, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ये। तो ये इसी तरह से ही सॉल्व होता है। ओके, अच्छा जी। Explain the effect on the titer of leaving the tin in the reaction mixture. Explain the effect of titer of leaving the tin in the reaction mixture। तो वो हमने इसलिए किया कि explain the effect on the titer of leaving the tin in the reaction mixture। तो उससे पता है क्या होगा? वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किससे? मैग्नेट से। आपका जो टिन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किससे? मैग्नेट से। बात समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया तो आपका जो टाइटर है वो इंक्रीज हो जाएगा। आपका जो टाइटर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अम्मार क्या कहते हो, टाइटर क्या होता है? हाँ, The amount of volume used from the burette. यस। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो अल्टीमेटली मैं क्या कहूंगा कि आपका जो टिन है विल ऑक्सीडाइज बाय मैग्नेट, will oxidize by manganate. So the titer will increase, so the titer will increase, so the titer will increase। ओके, हो गया जी। तो ये है, हम इसको यहीं तक अभी रहने देते हैं, क्वेश्चन 3 तक। क्वेश्चन 4 अल्टीमेटली अभी नहीं हो सकता, तो इसको जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।